section number 28, agreements and restraint of legal proceedings. This is our today's topic. Basically, we are going to discuss if any contract is such that it restrains a person from going to the court, then whether it is void or valid. आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल में. हम लोग इसके दोनों एक्सेप्शन को समझेंगे एंड देन वी विल रिफर टू केस लॉस ऑफ एवरी पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, लिमिटेशन पीरियड में इसका क्या रोल है, एक्सेप्शन के बारे में क्या कहानी है, सारी बातें आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी क्लियर विद देम. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 की. इसमें दो बातें करी गई हैं. सबसे पहला, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट अगर किया जाता है तो क्या होता है. देखिए, if I come in contract with a particular person, and when we are making that contract, we add this clause to the agreement that if there is a breach of that contract or there is some breach of consideration or there is breach of any particular thing of any particular clause of that contract, कोई ऐसी चीज है जिसमें वो परफॉर्म करनी थी और वो पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्म नहीं करता है, then also सामने वाला बंदा कोर्ट नहीं जाएगा. इस तरह की कोई कंडीशन अगर हम लोग ऐड करते हैं अपने पर्टिकुलर एग्रीमेंट में, देन इट इज सेड कि इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन इज गिविंग एन ऑफर, other is accepting it. Why all this is happening? So that both can be benefited from him. And if they are not getting benefited, so there is a court to protect their rights against the other person, so that he cannot be harassed or his rights cannot be misused by the other person. Okay, so अगर ऐसा होता है तो कोर्ट के पास से आप पावर छीन ले रहे हो ना इस एग्रीमेंट के थ्रू. सो इसलिए कोर्ट कहता है कि सेक्शन नंबर 28 के हिसाब से अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट हो रहा है जो कोर्ट जाने से आपको मना कर रहा है, तो दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट. क्लियर हो रहा है दिस पॉइंट? ओके, तो बात करते हैं एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग लीगल प्रोसीडिंग, देन इट मेक्स द एग्रीमेंट वॉइड. इसके अंदर अगर हम बात करें पार्शियल रिस्ट्रेन की, पार्शियल रिस्ट्रेन किस तरह से हो सकता है वो समझने की कोशिश करो. अगर मैं बताऊं कि कभी कभी ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी इन्फोर्सिबिलिटी दो कोर्ट्स पे होती है, यानी कि जहां पे एग्रीमेंट हुआ, जहां पे एक्सेप्ट हुआ, अगर दोनों जगहों के कोर्ट्स पे उस जगह की उस केस को डील करने की लाइक ज्यूरिसडिक्शन है, देन एन एग्रीमेंट दैट one of the particular court will only have the jurisdiction to deal with that case is a valid agreement. उस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, because it is not restraining your rights, it is like restraining the rights partially. We are talking about absolute restraint here. Okay, this was like when two courts can deal ना, तो इस केस में इसमें जो मैंने तुम्हें कहानी बताई कि it is valid thing, ये partial restraint होता है. All this was held in the case of Ajmer brothers versus Suraj Narayan Kumar Jain. Okay, so first point clear है हमारा कि restricts a party from enforcing his rights in respect to the contract. It's clear. Next is when there is a partial restraint. It's clear. And when we talk about a practical example, no, so then we talk about this case. Yeah, Tapash Majumdar versus Pranav Das Gupta. What happened in this case was the executive committee was given a right to take actions against the people of a particular group if they are raising any objections for the election. मतलब कि वो इलेक्शन के अगेंस्ट कोर्ट में जाने से उनको मनाही हो गई. अगर कोई धांधली होती है, if anything is wrong, if any malpractice is being conducted in the election of that particular group, then they are not allowed to go to the courts. And this kind of restraint was said to be a void restraint. This kind of agreement was said to be a void agreement because it was against this. It was in the restraint of legal proceeding. It was in section, it was coming under section 28. It's clear? तो ये क्लियर हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट है हमारा लिमिटेशन एक्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में. जी हाँ, इफ वी टॉक अबाउट लिमिटेशन एक्ट ना, देन देयर इज अ स्पेसिफिक पीरियड विच इज डिस्क्राइब्ड फॉर एवरी एक्ट इन द लिमिटेशन एक्ट. That is, for example, if we talk about a contract, a breach of contract, then after a breach of contract, you have this right of suing the other person for the next 3 years. अगर आप उसके बाद सू करते हो तो आपके पास वो आप उसको नहीं सू कर सकते हो. जैसे कि पैसे आपको ऐंठने हैं, मान लो ऐंठने क्या है, if somebody has not given back your amount, like loan if someone has taken and then someone is not giving back that particular money, then if you are not suing him
for next 3 years from the due date, remember, from next 3 years from the due date, then you are not having the capacity to sue. You have lost your right to sue that particular person. This was said to us by Limitation Act. And if we are talking about this second point, then it is saying कि Limitation Act में जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ना पर्टिकुलर चीजों का, अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाते हो जो उस टाइम पीरियड को कम कर देता है, जैसे ये कह देता है कि आप ये पैसा 3 साल तक नहीं, आप 1 साल तक अगर नहीं मांगोगे तो आप सू नहीं कर पाओगे, देन इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दैट मनी. तो ऐसा अगर ये कह रहा है कोई एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा बिकॉज इट लिमिट्स द टाइम पीरियड गिवन बाय द लिमिटेशन एक्ट. दैट इज व्हाट आई कॉल्ड इट एज 1 year 3 year कॉन्सेप्ट, जो मैंने तुम्हें बताया. ठीक है, अब अगर हम बात करें एक और कॉन्सेप्ट की, जो कि है हमारा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में जब हम बात करेंगे ना कि some agreements are there which extinguishes the rights of a person. Getting my point? Extinguishes the right of a person after a particular specified time. That is, यहां पे हम डायरेक्टली ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो और सू नहीं कर सकते हो. हम यहां ये कह रहे हैं कि अगर इतना समय बीत गया तो आपका ये पर्टिकुलर राइट ही खत्म हो जाएगा. इसके पीछे का भी एक लॉजिक था. देखो, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एविडेंसेस जो कलेक्शन होता है और भी बहुत चीज, और जो फ्रेश विटनेसेस के जो एविडेंसेस होते हैं एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द केस, तो वो जितना ओरिजिनल जितना नया होता है उतना अच्छा होता है ना. बट इफ बहुत सारा टाइम बीत जाता है तो वो चीज सही नहीं रहती है. ये जो केस है मोस्टली इंश्योरेंस के केस में आता है. मान लो अगर कहीं पे ऐसा एग्रीमेंट है, जो कि इस केस की बात करेंगे हम लोग, बड़ौदा स्पिनिंग एंड वीविंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सत्यनारायण मरीन एंड फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. तो यहां पे होता क्या है कि एक एग्रीमेंट बनता है कि अगर इंश्योरेंस जो आपने कराई है उसके लिए आप पैसा 3 महीनों के अंदर अवेल नहीं करना चाहेंगे, तो आप अपना पैसे अवेल करने का राइट खो देंगे. तो कोर्ट यहां कहता है कि यहां एक्सटिंग्विशिंग ऑफ राइट का जो क्लॉज है, दिस इज नॉट अगेंस्ट सेक्शन नंबर 28. बट the point which is to be mentioned here is that amendment आया, याद रखना दिस पॉइंट को, amendment आया in 1997. what happened after that amendment was anything, जो मैंने तुम्हें कहानी समझाई कि extinguishes right और ये है वो है, कुछ नहीं माना जाएगा. कोर्ट सेड, बल्कि अमेंडमेंट के बाद ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी ऐसी चीज जो लिमिटेशन एक्ट के पीरियड को डिस्टर्ब कर रही है, कोई भी ऐसा क्लॉज, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड एग्रीमेंट, दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट. ठीक है, ये बात क्लियर है. सेक्शन नंबर 28 का क्लॉज 2 क्लियर है. अमेंडमेंट 1997 के बाद प्रेजेंट पोजीशन क्या है ये क्लियर है. ओके, व्हेन नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस टू इट. एक्सेप्शंस क्या है सर? कि ऐसा तो नहीं है कि हम कोर्ट जाने से रोक सकते हैं, पर हम उस प्रोसीडिंग में कुछ ठहराव या एक तरह से स्टे लगाने की कोशिश कर सकते हैं, एक तरह से पार्शियली रोकने की कोशिश कर सकते हैं, और वो जो रोकना होगा वो गलत नहीं होगा. मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो किसी जगह पे ऐसा क्लॉज है कि आप आर्बिट्रेशन में पहले जाएंगे अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होगा, तो ये क्लॉज वॉइड नहीं है. यहां पे आप कोर्ट जाने के राइट को रिस्ट्रेंट नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए स्टे लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुद्दा सॉल्व हो जाए तो आर्बिट्रेशन के थ्रू ही हो जाए. आर्बिट्रेशन कुछ नहीं भाई, हम बैठे तुम बैठे, बगल में एक आर्बिट्रेटर बैठा, वी डिस्कस की जो सही चीज है, आर्बिट्रेटर उसके हिसाब से अपना एक डिसीजन देगा, जो बात सही होगी समझा बुझा के, वो चीज है. अब एक बात यहां पे पॉइंट क्या है नोट करने वाला, कि आर्बिट्रेशन के बाद जो डिसीजन आएगा ना, ऐसा नहीं कि आप बाध्य ही हो मानने के लिए. एग्रीमेंट कहता है कि हाँ आपको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, बट आप कोर्ट फिर जाओगे तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास अलाउंस नहीं है कोर्ट जाने का, आपका वो राइट छीन लिया गया है. हाँ, कोर्ट जाके भी आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, नेसेसरी वजह बतानी पड़ेगी कि आप क्यों नहीं आर्बिट्रेटर की बात मान रहे हो, वो सब बातें बात की हैं, बट योर राइट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड. इट्स क्लियर. तो यहां पे ये क्लॉज जो है इसीलिए एक्सेप्शन के अंदर डाला गया है कि ये आपको कोर्ट जाने से रोक तो रहा है बट पार्शियली. क्लियर है. सो दिस केस कोरेंगा ऑयल वर्सेस कोबरा लिमिटेड कम्स इनटू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट इज हम बात करेंगे कि फ्यूचर में तो कोई एग्रीमेंट अराइज कर रहा है, फ्यूचर में कोई अगर दिक्कत अराइज कर रही है तो हम लोग आर्बिट्रेशन क्लॉज के लिए बना रहे हैं.
बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर करंटली भी कोई दिक्कत है वाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट या फिर है ना, तो हम तब भी उसको आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, जब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, भविष्य में क्या दिक्कत आएगी वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए उन्हें मालूम है कि करंटली कुछ दिक्कतें आ चुकी हैं, उसके बाद भी वो उस एग्रीमेंट क्लॉज को ऐड कर सकते हैं रिगार्डिंग arbitration, and then it will not be an exception, it will not be against this section number 28, and it is said कि अगर ये क्लॉज ऐड नहीं है as per the arbitration act तो ये चीज वैलिड नहीं होगी, तो आर्बिट्रेटर के पास जाना वैलिड नहीं होगा। ये बात क्लियर है। ये बात हमारी डिक्लेयर हुई थी स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस भाग्यदत्त दास के केस में। ठीक है, दोनों एक्सेप्शंस क्लियर है, सेक्शन नंबर 28 की पूरी कहानी क्लियर, दोनों क्लॉज, सारे केस लॉ, सारी बातें क्लियर है। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और हाँ दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।